Bismillahirrahmanirrahim. This is Amir Iqbal, your English teacher from Punjab Group of Colleges. Dear students, today I am going to teach you a lesson, that is the blanket. Let's start with the reading comprehension. Blanket, let's talk about the title. The blanket, in Urdu we call it kambal. Let's move to the reading. It was a fine September night. ये सितंबर की एक खुशगवार रात थी. A thin white moon rose over the valley. Valley means dale, वादी को कहते हैं. वादी पर एक बारीक सफेद चांद निकल आया था. Peter, 11 years old, did not see the moon. Now beta, in this story there is a character that is Peter, so he is the leading character of this particular story. पीटर 11 साला जिसकी उम्र 11 साल थी, उसने चांद नहीं देखा. He did not feel the cool September breeze blow into the kitchen, for his thoughts were fixed on a red and black blanket on the kitchen table. उसने बावर्ची खाने के अंदर आने वाली सितंबर की ठंडी हवा को महसूस नहीं किया. Breeze is used for gentle wind. Breeze खुशगवार हवा के लिए यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है. Why he didn't see? Basically here he is talking about why he didn't feel that particular gentle wind. उसने क्यों नहीं महसूस किया? क्योंकि for means because his thoughts were fixed on a red and black blanket on the kitchen table. क्योंकि उसकी सोचें बावर्ची खाने की मेज़ पर पड़े सुर्ख और स्याह कंबल पर जमी हुई थी, टिकी हुई थी. The blanket was a gift from his dad to his granddad, a going away gift. वो कंबल उसके बाप की तरफ से. Now dad is a word that is who is the father of Peter, और granddad वो पीटर के ग्रैंडफादर हैं. बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है. वो कंबल उसके बाप की तरफ से उसके दादा के लिए तोहफा था. A going away gift, एक अलविदाई तोहफा, एक जाने वाले के लिए जो तोहफा लिया जाता है और जब कोई शख्स जा रहा होता है उसको ये तोहफा प्रेजेंट किया जाता है. They said that granddad was going away. वो कहते थे कि दादा जा रहे थे. So that's why they called it going away. यही वजह थी कि वो उन्होंने उसे अलविदाई कहा था. Peter had not really believed his dad would send granddad away. यहाँ पे देखें, हमें बताना चाह रहा है कि पीटर को यकीन नहीं आ रहा था कि उसके वालिद उसके दादा को भेज देंगे. But now, लेकिन अब there it was the going away gift. लेकिन अब ये अलविदाई तोहफा था जो आ चुका था और जो इस बात का सबूत था कि now he was going to leave their house. Dad had bought it that very morning. अब देखें, वालिद ने उसे उसी सुबह खरीदा था. And this was the last evening he and his granddad would have with each other. और ये उसकी और दादा की एक दूसरे के साथ आखिरी शाम थी जो वो इकट्ठे बैठकर गुजारेंगे. Together, the old man and the young boy washed the supper dishes. Supper, basically, it's used for evening meal. बूढ़े आदमी और नौजवान लड़के ने शाम के खाने के बर्तन इकट्ठे धोए. Dad had gone out with that a woman he was to marry. वालिद उस खातून के साथ बाहर गए थे जिसके साथ वो शादी करने वाले थे. He would not be back for some time. यहाँ पे देखें, वो कुछ देर के लिए वापस नहीं आएंगे. When the dishes were finished, the old man and the boy went outside and sat under the moon. आप देखें, यहाँ पे हमें बताना चाह रहा है कि जब बर्तन ख़त्म हो गए तो बूढ़ा आदमी और लड़का बाहर निकले और चांद की रोशनी में बैठ गए. I'll get my harmonica. Harmonica, basically it's a musical instrument and play for you. बूढ़े ने कहा कि मैं अपना हारमोनियम लेकर तुम्हारे लिए बजाऊंगा.
The old man said, I will play some of the old tunes. मैं कुछ पुरानी धुनें बजाऊंगा. But instead of the harmonica, he brought out the blanket. It was a big double blanket. लेकिन वो हारमोनियम की बजाय कंबल ले आया. ये एक बड़ा और दोहरा कंबल था. डबल blanket. Now, isn't that a fine blanket? said the old man. अब क्या ये उम्दा कंबल नहीं है? बेसिकली वो अपने जो ग्रैंडसन है उससे पूछ रहा है. Smoothing it over his knees. Smoothing means basically pressing it. As far as pressing is concerned, flatten is concerned. बूढ़े ने अब उसे अपने घुटनों पर हमवार करते हुए कहा, And isn't your father a kind man to be giving the old man a blanket like this to go away with? और क्या तुम्हारे वालिद एक मेहरबान शख्स नहीं हैं कि एक बूढ़े को अलविदा के मौके पर एक ऐसा कंबल दे रहे हैं? It cost something, it did. Look at the wool in it. आप देखें यहाँ पे वो कहना चाह रहा है इस पर खर्चा आया है और आया होगा, इसकी ऊन को देखो. और यहाँ पे हमें वो बताना चाह रहा है and warm it will be these cold winter nights to come. देखें यहाँ पे वो बताता है कि ये आइंदा आने वाली सर्दियों में गर्म भी होगा और there will be no other blanket like it up there. और वहाँ पर इसकी तरह दूसरा कंबल नहीं होगा जहाँ पे वो उसको लेकर जा रहा है. बेसिकली यहाँ पे हमें बताना चाह रहा है कि ग्रैंड डैड को भेजा जा रहा है और जो डैड हैं वो उसको ओल्ड एज होम जो है उसमें भेज रहे हैं. और जो सन है, बेसिकली द सन पीटर, ही इज़ वरीड अबाउट हिज ग्रैंड डैड. इट वॉज लाइक ग्रैंड डैड टू बी सेइंग दैट. इस तरह की बात करना ये बेसिकली ऐसे था कि एक दादा की तरह था. ही वॉज ट्राइंग मेक इट ईजियर. आप देखें यहाँ पे वो इसे आसान बनाने की कोशिश कर रहे थे. बेसिकली ही वॉज ट्राइंग टू कन्विंस हिज ग्रैंडसन. एवर सिंस दे हैड टॉक्ड अबाउट गोइंग अवे. जब से उन्होंने दूर जाने की बातें शुरू की थी. ग्रैंड-डैड हैड सेड इट वाज हिज आइडिया. दादा अबू ने कहा था कि ये उनकी तजवीज़ थी. इमेजिन, तसव्वुर करें, जस्ट इमेजिन leaving a warm house and friends to go to that building, that government place where he would be with so many other old fellows. एक गर्म घर और दोस्तों को छोड़कर उस इमारत में चले जाना, एक सरकारी जगह जहाँ पर वो बहुत से दूसरे बूढ़ों के साथ होंगे. और यहाँ पे बताना चाह रहा है having the best of everything, जिनके पास हर एक सहूलत होगी. But Peter had not really believed Dad would do it. लेकिन पीटर को यकीन नहीं था कि उसके वालिद ऐसा करेंगे. Until this night when he brought home the blanket. उस रात तक जब वो ये कंबल लेकर आए. Oh yes, it's a fine blanket, Peter said and got up and went into the house. ओ हाँ, ये बेहतरीन कंबल है, पीटर ने कहा और उठकर घर की तरफ चला गया. He wasn't the kind to cry. वो रोने वालों में से नहीं था. And besides, moreover, इसके अलावा, in addition to, he was too old for that. इसके अलावा वो ऐसा करने की उम्र से काफ़ी बड़ा था. He had just gone in to get granddad's harmonica. आप यहाँ पे देखें, वो अंदर सिर्फ दादा अबू का जो हारमोनियम लाने के लिए गया था. The blanket dropped to the floor as the old man took the harmonica. या हारमोनियम लिया तो कंबल फर्श पर गिर गया. It was the last night they would have together. ये उनके लिए आखिरी रात थी कि वो इकट्ठे होंगे. Neither the old man nor the young boy had to say a word. ना तो बूढ़े और ना ही लड़के के पास बोलने के लिए एक भी लफ्ज़ था. Granddad played a few notes and then said, "You will remember this one." दादा अबू ने
चंद धुनें बजाईं और फिर कहा, तुम इसको याद रखोगे। द थिन मून वॉज हाई ओवरहेड एंड द जेंटल ब्रीज ब्लो डाउन द वैली। थिन हियर मीन्स स्लेंडर। जो पतला चांद था, जस्ट लाइक नेल, एक नेल की तरह पतला चांद ऊंचा सर के ऐन ऊपर था और नीचे वादी में आहिस्ता हवा चल रही थी। द लास्ट टाइम पीटर थॉट, आखिरी बार पीटर ने सोचा, ही वुड नेवर हेयर ग्रैंडडैड प्ले अगेन, वो दादा को इसके बाद दोबारा मौसीकी बजाते हुए नहीं सुन पाएंगे। इट वॉज वेल दैट डैड वॉज मूविंग टू अ न्यू हाउस अवे फ्रॉम हियर। ये अच्छा था कि उसके वालिद एक नए घर में मुंतकिल हो रहे थे जो यहाँ से दूर वाक़ था। He did not want to sit here outside on fine evenings under a white moon with granddad gone. अब यहाँ पे देखें, वो दादा के जाने के बाद यहाँ खुशगवार शामों में सफ़ेद चांद की रोशनी में बैठना नहीं चाहता था। The music ended. मौसीकी ख़त्म हो गई and the two sat for a few minutes in silence. और दोनों चंद मिनट के लिए खामोशी से बैठे रहे। Then granddad spoke. और फिर दादा अबू बोले, उन्होंने कुछ कहा। Here is something happier. यहाँ कुछ खुशी की बात है, तुम्हारे लिए खुशी की बात है। Peter sat and looked out over the valley. पीटर बैठा और उसने वादी पर एक नज़र डाली। Dad would marry that girl. वालिद उस लड़की से शादी करेंगे। यहाँ पे वालिद कौन है? बेसिकली he is the father of Peter. ये पीटर के फादर हैं। Yes, that girl who had kissed him and who had said she would try to be a good mother to him and all that. वो लड़की जिसने उसका बोसा लिया था, उसका माथा चूमा था और कहा था कि बस वो उसकी अच्छी माँ बनने की कोशिश करेगी। The tune stopped suddenly and granddad said, वो जो साज था, वो जो धुन थी, अचानक रुक गई और दादा अबू ने कहा, It's a poor tune except to be dancing to. आप देखें, वो कहते हैं कि ये एक कमज़ोर धुन है, ये एक पुअर ट्यून है। यहाँ पे देखें ट्यून है और सिर्फ रक्स के लिए है। एंड देन इट्स अ फाइन गर्ल योर फादर्स गोइंग टू मैरी। और फिर वो एक अच्छी लड़की है जिससे तुम्हारे वालिद शादी करने वाले हैं। ही विल फील यंग अगेन विद अ प्रेटी वाइफ लाइक दैट। वो इस खूबसूरत बीवी के साथ खुद को जवान महसूस करेंगे। एंड वट वुड एन ओल्ड फेलो लाइक मी डू अराउंड द हाउस। और मुझ जैसा बूढ़ा आदमी यहाँ इस घर में क्या करेगा। यहाँ पे जो ओल्ड मैन है, basically he is giving reasons to his grandson. He is trying to pacify him. He is trying to convince him. Getting in the way, an old fool with all the talk about backaches and pains. अब बेटा यहाँ पे जो बैकेक्स हैं, यहाँ पे किसकी कमर दर्द की बात हो रही है। और यहाँ पे वो कहता है कि रास्ते की रुकावट बनकर एक बूढ़ा अहमक जो सिर्फ कमर के दर्दों और तकलीफ की बातें करता है, उसका यहाँ पे क्या काम है, वो यहाँ पे क्या करेगा। एंड देन देयर विल बी बेबीज कमिंग। और फिर बच्चे आएंगे। यहाँ पे बच्चे किसके आएंगे? बेसिकली ही इज टॉकिंग अबाउट डैड। एंड I don't want to be around listening to them cry all hours of the night. No, it's best that I leave. और यहाँ पे देखें, और मैं नहीं चाहता कि सारी रात उनके चीखने की आवाज़ें सुनूं। नहीं, बेहतर ये है कि मैं चला जाऊं। One more tune or two. अच्छा, मज़ीद एक या दो धुनें और and then we will get to bed, get some sleep. और फिर वो कहता है कि हम जाकर बिस्तर में कुछ देर सोएंगे। In the morning I will get my new blanket and take my leave. अब यहाँ पे देखें, सुबह मैं अपना नया कंबल लेकर यहाँ से रुखसत हो जाऊँगा। Listen to this. इसे सुनो। बेसिकली यहाँ पे बताना चाह रहे, It's a bit of a sad tune. ये कुछ गमगीन धुन है। But a nice one for a night like this.
लेकिन इस तरह की रात के लिए ये बहुत अच्छी है, ये बहुत उम्दा है. They did not hear the two people coming down the road, Dad and the pretty girl with a hard, bright face like a doll. Pretty means lovely. It's an attractive girl. But they heard her laugh and the tune stopped suddenly. उन्होंने सड़क की तरफ आते हुए दोनों अफराद की आवाज़ नहीं सुनी. ये दोनों अफराद कौन थे? वो जो उसकी वुड बी वाइफ थी, होने वाली उनकी वाइफ थी, वो जो गर्ल हैं, और डैड हैं, वालिद और ख़ूबसूरत लड़की जिसका चेहरा गुड़िया की तरह सख्त और चमक रहा था. लेकिन उन्होंने उस लड़की को हंसते हुए सुना और धुन अचानक रुक गई. Dad did not say a word, but the girl walked up to Granddad and said prettily. Prettily means beautifully. वालिद ने एक लफ्ज़ भी ना कहा, लेकिन लड़की दादा के पास आई और निहायत अच्छे और ख़ूबसूरत अंदाज से उसने कहा, I will not be seeing you in the morning, so I came over to say goodbye. मैं आपको सुबह सवेरे ना देख सकूँगी, इसलिए मैं आपको खुदा हाफिज़ कहने आई हूँ. It's kind of you, said Granddad, looking down at the floor, and then seeing the blanket at his feet, he bent down to pick it up. दादा ने कहा, यह आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी है, आपकी नवाजिश है. नीचे फर्श की तरफ देखते हुए और फिर नीचे पैरों पर कंबल को देखा और उसे उठाने के लिए झुके. And will you look at this? और क्या तुम इसे देखोगी? He said, sounding himself like a little boy. Now here you may see the emotions, the feelings of that particular old man. और देखें वो कहता है कि उसने बच्चों जैसी आवाज़ में कहा, क्या ये एक isn't this a fine blanket my son has given me to go away with? वो कहता है कि ये एक बेहतरीन कंबल नहीं है जो मेरे बेटे ने मुझे रुखसती के मौका के लिए दिया है. Yes, she said, it's a fine blanket. She felt the wool again and said, उसने कहा, हाँ ये एक बेहतरीन कंबल है. उसने उसकी जो ऊन को दोबारा छू कर देखा और कहा, a fine blanket indeed, ये यकीनन एक बेहतरीन कंबल है. She turned to Dad and said to him coldly. Coldly means unemotionally, basically without affection or warmth of feeling. यहाँ पे देखें, उसने उसकी ऊन को देखा. अब जब उसने देखा तो वो फिर उसने क्या किया, वो वालिद की तरफ मुड़ी और सर्द मोहरी के साथ उसे कहा, What did she say? Must have cost a pretty penny. कहती है इस पर काफ़ी खर्चा भी आया होगा. She is talking about the cost of that particular blanket. Dad cleared his throat. Dad ने अपना गला साफ करते हुए कहा, I wanted to have the best. मैं उसे इससे भी अच्छा देना चाहता था. The girl stood there. लड़की वहाँ पर खड़ी थी. Still looking at the blanket. और अब भी वो कंबल की तरफ देख रही थी. It's an expression. It's a double one too. ये कंबल दोहरा भी है. Yes, the old man said, it's a double one. हाँ, बूढ़े आदमी ने कहा, ये दोहरा है. A fine blanket for an old fellow to be going away with. ये दोहरा है एक बूढ़े की रुखसती के लिए एक बेहतरीन कंबल है. The boy suddenly walked into the house. लड़का अचानक घर के अंदर चला गया. He could hear the girl still talking about the expensive blanket. वो अब भी लड़की को महंगे कंबल के मुतालिक बातें करते हुए सुन रहा था. He heard his dad get angry in a slow way. उसने सुना कि वालिद साहब आहिस्ता आहिस्ता गुस्से हो रहे थे. And now she was leaving. और अब वो रुखसत हो रही थी. As Peter came out. जो ही पीटर बाहर निकला, the girl turned and called back. लड़की मुड़ी और कहा, no matter what you say, he doesn't need a double blanket. जो कुछ भी कहें, लेकिन उन्हें दोहरे कंबल की ज़रूरत नहीं है. Dad looked at her with a funny look in his eye.
डैड ने उसे मुज़ाहिका खेज नज़रों के साथ देखा। शी इज़ राइट डैड, द बॉय सैड। यहाँ पे उस लड़के ने कहा, डैड वो बिल्कुल ठीक कहती हैं। ग्रैंड डैड डजंट नीड अ डबल ब्लैंकेट, दादा अबू को दोहरे कंबल की ज़रूरत नहीं है। एंड ही हेल्ड आउट अ पेयर ऑफ सीजर्स, सीजर्स मीन क्लिपर्स, शेयर्स, और उसने कैंची पकड़ाते हुए कहा, कट इट डैड, कट द ब्लैंकेट इन टू, अब्बा इसे काट दीजिए। उसने अपने वालिद साहब से कहा, कंबल को 2 हिस्सों में काट दीजिए। बोथ ऑफ देम लुक्ड एट द बॉय सरप्राइज्ड, शॉक्ड। दोनों ने लड़के की तरफ हैरानी से देखा। कट इट इन टू, अब यहाँ पे वो कहता है कि आई टेल यू डैड एंड कीप द अदर हाफ। तो उसने कहा कि मैं आपसे कहता हूँ इसे 2 हिस्सों में काट दीजिए और दूसरा हिस्सा रख लीजिए। दैट्स नॉट अ बैड आइडिया, सेड ग्रैंड डैड जेंटली, सॉफ्टली। दादा अबू ने धीमे लहजे में कहा, ये बुरा ख्याल नहीं है। आई डोंट नीड सच अ बिग ब्लैंकेट, मुझे इतने बड़े कंबल की ज़रूरत नहीं है। Yes, the boy said, a single blanket is enough for an old man when he is sent away. लड़के ने कहा, हाँ एक बूढ़े शख्स के लिए एक कंबल काफ़ी है जब उसे घर से दूर भेजा जा रहा हो। We will save the other half, Dad. It will come in useful later. Now see, this is the ironical statement, appearance versus reality. अब यहाँ पे वो कहता है कि अब हम जो दूसरा उसका पीस है, दूसरा जो उसका हिस्सा है, उसको महफूज रखेंगे, ये बाद में काम आएगा। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दैट, आस्क डैड। वालिद ने पूछा। अब उसने कहा, वालिद ने कहा, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? आई मीन सेड द बॉय स्लोली, लड़के ने कहा, आहिस्ता से कहा, मेरा मतलब है दैट आई विल गिव इट टू यू, कि मैं आपको दे दूंगा। डैड व्हेन यू आर ओल्ड एंड आई एम सेंडिंग यू अवे। यहाँ पे देखें, देयर इज अ ट्विस्ट इन द स्टोरी, देयर इज अ climax in the story as far as the climax is concerned, as far as the resolution is concerned. यहाँ पे देखें, वो कहता है कि मैं इसे आपको दूंगा जब आप बूढ़े होंगे और मैं आपको दूर भेज रहा हूँगा। There was a big silence and then Dad went over to Granddad and stood before him, not saying a word. गहरी खामोशी, big means deep silence, गहरी खामोशी छा गई। और फिर अब्बा दादा अबू के पास गए और उनके सामने कुछ कहे बगैर खड़े हो गए। बट ग्रैंड डैड अंडरस्टूड, लेकिन दादा अबू समझ गए। फॉर बिकॉज ही पुट आउट हिज हैंड, उन्होंने अपना हाथ निकाला एंड लेड इट ऑन डैड्स शोल्डर, और उन्होंने उस अब्बा के कंधों पर रखा। पीटर वॉज वॉचिंग देम, और पीटर उनको देख रहा था। एंड ही हर्ड ग्रैंड डैड विस्पर, विस्पर मीन्स मर्मर, सरगोशी करना, और उसने दादा अबू को सरगोशी करते हुए सुना। स्लोली, इट्स ऑल राइट सन। अब देखें, यहाँ पे वो कहता है, कोई बात नहीं बेटा, मैं जानता था। बेसिकली आई न्यू यू डिडंट मीन इट, कि मैं जानता था तुम्हारा मतलब ये हरगिज नहीं था। एंड देन पीटर क्राइड, और फिर पीटर रोने लगा। बट इट डिडंट मैटर बिकॉज ऑल 3 वर क्राइंग टुगेदर, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो तीनों इकट्ठे रो रहे थे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेसन। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज़।